ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਲ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਛਲ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇੰਪਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੀਨੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਸੀਹਤ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਮਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਖੁਦ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਤਸਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਗੌਰ ਕਰੋ, ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਫਿਕਰ ਹੈ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਗੌਰ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਅਗਲੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का नया दिन, नया व्लॉग। दिन दिया अल्लाह पाक ने और हमें ये ताकत दी कि हम व्लॉग बनाएं और कुछ बातें करें आपसे। तो सो जनाब, अपनी बातें लेके आज एक नए दिन के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए हाज़िर खिदमत हैं। हमारे सज्जन मित्र, सजनियाँ, गुड़िया, ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਚਿੜੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਦਾਬ ਵਰਸੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਦਾਬ ਵਰਸੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵਲੌਗ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਲਓ ਜੀ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ तो एक अच्छे धंधे में लग गई हैं आप। ये बड़ा आपका अच्छा काम है। ये काम है, काम है। काम, कारोबार, बिजनेस, अपॉर्चुनिटी, एफर्ट, धंधा या धंधा। धंधा भी किसी की जुबान है, उसका लफ्ज पंजाबी में है तो नहीं पंजाबी में नहीं है धंधा नहीं है। ना, ये भी उर्दू का ही लफ्ज है धंधा। हाँ, तो धंधा इसमें बुराई क्या है?
इसको आप गलत एंगल से क्यों देखते हैं? नहीं, कोई भी नहीं, लेकिन धंधा सम टाइम हमने जो किताबों में देखा, किताबों में पढ़ा, वो धंधे का मीनिंग ज़रा थोड़ा सा उधर चला जाता है। जो तल्ख है। नहीं, जो ख़वातीन ये काम करती हैं, जो अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा ना, जो ख़वातीन आपको पता है कि जो अपनी इस्मत फरोशी। क्या इस्मत फरोशी, यस सही हमसे है, बात मैंने करें कहा। बाबा, फारसी बान तो फारसी बान। लेकिन धंधे का मतलब तो काम ही है, वो अपनी लैंग्वेज है उनकी ना, तो उस लैंग्वेज का ही बात तो इनकी सही है कि ये धंधा देखिए, भी एक काम ही है। मगर अगर ये धंधा ना बोलें, हज़ार हा लफ्ज़ इन्होंने और बोल दिए हैं, तो उन हज़ार हा का लफ्ज़ अपनी ज़बान पे लाएं, अपने दिमाग पे लाएं, ताकि इनको याद रहे। ये हमेशा धंधा बोलते हैं, मैं समझ बताता नहीं आती। आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए कि कोई लफ्ज़ गंदा नहीं होता, हमारी सोच ऐसी है जिसको उस तरफ ले जाती है। अब इस्मत फरोशी हमने कहा, ठीक है, अब इसको इंग्लिश में अगर मैं कहता प्रोस्टिट्यूशन, बात तो एक ही है, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन आपको बुरा लगता। क्यों? क्योंकि वो दिमाग में ऐसे बिठा दिया गया है कि ये कोई गंदा काम है। इस्मत फरोशी गंदा काम नहीं है, ये सोच की बात है, सोचते हैं हम ऐसे। लफ्ज़ की मीनिंग अपनी अपनी हर किसी की है, लेकिन आप उसको पॉजिटिव लें। धंधे का मतलब आप एक काम पे लगी हुई हैं, एक असाइनमेंट पूरा कर रही हैं आप, उससे चलें, धंधा। बहुत मेहरबानी, फ़िज़ा आ गई है। अच्छा जी, तो जनाब ज़िंदगी तो चल पड़ी। फ़िज़ा जानू भी तैयार हो के किधर जा रहे हो? फ़िज़ा जानू बड़े तैयार तुरू हुए हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ठीक है पासपोर्ट का ठीक क्या है। पड़ेगा? ये पासपोर्ट का फ़िज़ा का भी कोई काम है ना, जिधर जा रही है आपके साथ। अभी करना है आज आपने? हाँ जी हाँ जी, अभी निकलते हैं, हम भी तैयार हुए हुए हैं पेपर और इधर निकलना पड़ा हुआ चाह है। रहे हैं हम। ये पढ़ रहे थे 6 दिनों से कर रही है। वो बस यूज़ कभी हो जाता है, नहीं होता तो नहीं होता। जानू क्या है ये वाला? ये पेपर है, रखते उधर। इस वक्त काम हो रहा है, दिमाग को डाइवर्ट ना किया करें। ये अगर एक काम है तो इसको काम की तरह मैं लेती हूँ, मैं वैसे नहीं लेती मजाक के तौर पे। ठीक है ना व्यूअर्स, ये समझते हैं मजाक है, ये मजाक डालना चाहते हैं, डालना चाहिए, आपको खुश भी तो करना है ना। लेकिन मैं बड़ी सीरियस लेती हूँ अपने काम को, मैं बड़ी सीरियस खातून हूँ। मैं बहुत डेडिकेट तरीके से आपसे बातचीत। डैडी गेट पे है। डैडी तो गेट पे हैं, लेकिन ये डैडी जो बैठे हुए हैं सामने, ये आपने अपने हैं। अंदाज देखा है? ये जान के किया है। ये क्या है? आपको नहीं पता कि इसने जान के कर रही है, इस वक्त एक्ट कर रही है। ये हमारी एक्टिंगों को भी नहीं समझते, हम क्या कह सकते हैं। ओ वो तो बाहर चली गई हैं। तो जानू उठे उठे उठे, दौड़े दौड़े दौड़े, ज़माना क़यामत की चाल चल गया। एक बात है व्यूअर्स, सम टाइम हम बड़े मेहरबान हो जाते हैं दूसरों में। सम टाइम क्या, कुछ लोगों की आदत होती है, वो दूसरों के साथ मेहरबान रहते हैं, और कोई काम करवा रहे हैं तो उनको टिप देंगे, उनको स्पेशल नहीं दी तो उनसे माजरत करेंगे कि आज टिप नहीं दे सका। मगर यकीन जाने कि मैंने इंसानी सरिश्त देखी है कि होना तो ये चाहिए, जो आप पे मेहरबान है, जो आप पे मेहरबान है, आप उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका काम करें और कोई उसके ज़हन में ना आए उसके लिए। लेकिन मैंने ये देखा है कि लोग जो है ना, आपसे अगर टिप ले रहे हैं, आप कहीं से काम करवा रहे हैं, खुशी से आपने उसको कुछ दे दिया है, हालांकि काम के 2 पैसे आप उसको दे रहे हैं, जिससे वो सब कुछ मतलब उसमें शामिल है, लेकिन चलें आप अपनी खुशी के लिए कुछ और भी दे देते हैं। मगर काम फिर तसल्ली बख्श ना हो, आप को कोई चीज़ें नज़र आए बात में तो तकलीफ पहुंचती है। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि इतना मेहरबान ना ही होना चाहिए। आपने अपना काम करवाया है, आपने पैसे उसको दिए हैं जितने उसने मांगे हैं, आपने उसमें रूरिया इतना करें, चलें जो वो कहती है या कहता है आप वो दे दें उसको। लेकिन बाद में ये जो मेहरबानियाँ हम करते हैं ना, इन मेहरबानियों को लोग फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, और ये इंसान, बहुत से इंसान मैंने देखे हैं जो इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो
ये भी एक बड़ी ज़रूरी बात थी, मैंने कहा आपको बताऊं कि इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए ताकि लोग आपको यूज़ ना करें और कहें कि ये अब हमें दे भी नहीं रही कोई टिप वगैरह और काम भी चलाओ कर दिया, चलो जी, और चलो जी बात ख़त्म हुई। तो ये ज़रा हमें ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का। क्यों असद साहब? ये क्या सोच के आपने बोला है, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, एक जनरली बात मैं कर देती होती हूँ, मेरे ज़हन में कई आती हैं बातें, मैं सुना देती हूँ अपने व्यूअर्स को। एक अच्छी बात की तरफ ले जाना चाहती हूँ क्योंकि इंसान जो है वो बड़ा सादा होता है और सादगी में कई चीज़ें करता है। मैं तो करता हूँ, मैं तो देता हूँ। ठीक है, मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है। अगर किसी ने फॉर ग्रांटेड लिए, आई डोंट नो, मुझे उस वक्त फील होगा ना जब मुझे कोई तकलीफ पहुंचेगी या नुकसान होगा। तो अगर मेरा नुकसान नहीं हो रहा या 10 लोगों को मैंने ऐसे किया, उसमें से 1 या 2 ने ऐसे कर दिया, तो क्या मतलब वो 80% जो रिजल्ट है उसको मैं छोड़ के सबको उसी तरह ट्रीट करूं? ये भी होता है ना। आपका पॉइंट तो है कि वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो ऐसे नहीं होते, वो ऑब्लाइज होते हैं। उन्हें फील होता है कि यार इसने मेरी इज्जत की है, मैं नेक्स्ट टाइम इसके लिए ज़्यादा करूँगा। अब मैंने इधर जो अपनी ब्रेकों का काम कराया था, वो ब्रेकें ख़राब हो गई और मैं उसके पास गया हूँ और उसको मैंने कहा कि यार मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ, मेरी गाड़ी फिट होनी चाहिए। उसने सारा जो सिस्टम था ना नया डाल के दे दिया, $550 का, और 1 पैसा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मैं उसको ऑब्लाइज करता हूँ, उसकी इज्जत करता हूँ। उसके जो बच्चे काम करने वाले उनको $5-5, $10 दे देता हूँ, तो वो इस चीज़ से रिस्पेक्ट करते हैं। $500-550 की चीज़ उसने फ्री करके दे दी। हो कैसे सकता है फ्री कर दी? अगर नहीं, 500-600 की कोई चीज डाली आपकी गाड़ी में तो कैसे फ्री दे दी? वही मैं बताने लगा हूँ ये ना। किस तरह पॉसिबल है? मैं वो बता रहा हूँ ना, सुनेंगी तो पता चलेगा ना किस तरह पॉसिबल है। जो मटेरियल उसने डाला है वो वारंटी के अंदर था, 1 साल की वारंटी थी, वो उसे फ्री मिल गई। जो उसने लेबर डाली है उसका उसने चार्ज नहीं किया। ये बात है सारी। सो वो एक ओबलाइजिंग हो जाता है। लेकिन आपका भी पॉइंट है कि ये फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कई लोगों ने लिया भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ओवरऑल जब मैं अपना बैलेंस करता हूँ ना तराजू तबड़ा पकड़ के, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। मेरे केस में तो मुझे नज़र आता है, आपके केस में शायद नहीं होगा, आपको ज़्यादा लोगों ने हाथ लगाया हो शायद, लेकिन मुझे तो लगता है कि ठीक है, करना चाहिए, अल्लाह के ऊपर छोड़। हाँ जी, अच्छा साहब तुसी कोई स्टे कर लेता, की गल है स्टॉप हो गए? मैं वेट करूँ तो जल्दी आ गया हूँ ना, उसका वेट कर रहा हूँ। अभी उसका आएगा टेक्स्ट, तो फिर आप लोग अंदर मॉल में चले जाइएगा, मैं उससे मिल लूँगा जाके। ठीक है, ठीक है। कोई मेरे आधा घंटा लग जाएगा उसके साथ, जो मीटिंग है ना, अच्छा अच्छा, आधे घंटे में हो जाएंगे। बड़िया मीटिंगां शीटिंगां चलदियां भी तुहाडियां, क्या कहने ने? और ये सब मीटिंगां, हिस्से शीटिंगां। तरक्की के हिस्से हैं, ये तरक्की के स्टेप्स हैं मावा। अच्छा जी, ये तरक्की आप करते हैं, आपको ये सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। वाह जी वाह। 19-20 भी होती है ज़िंदगी में, तो उसको हैंडल करें। हंसने की क्या बात है? हैंडल करें आपने कह दिया। हाँ, हम तो हैंडल हर वक्त करते हैं जी, हम तो हर वक्त व्यूवर्स हैंडल करते रहते हैं, इनको भी हैंडल करते हैं और सारी दुनिया को भी हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो उनमें आप नहीं है, कहीं आप सोचेंगे भाई हमें भी ये हैंडल कर रही हैं। नहीं नहीं, तो बस सफ़ार ये मैं कैसे कर सकती हूँ आपको हैंडल, ये नहीं कभी हो सकता। तो ये डायलॉग है, सब डायलॉग है, हकीकत ऐसे कोई नहीं है। हकीकत क्या है? हकीकत है, और क्या है? वो अगर बताएंगे तो आपने हो जाना, बुड़म बुड़म हो जाना काम। तो डायलॉग में जिंदगी चल रही है। यकीन माने कि इधर जो है ये डोनाल्ड ट्रंप, ये भी डायलॉग पे अपनी सियासत कर रहे हैं। ट्रूडो था उससे पहले, वो भी ये कर रहा था। जिधर जाओ डायलॉग ही चल रहे हैं। मैं ये कर दूंगा, तुम वोट दो, मैं आऊंगा तो ये कर दूंगा। हर शख्स जो है ना, ये कच्ची हंसी है, कच्ची जाली जाली,
ये सब जाली क्योंकि ऐसी मैं है। देख रही हूँ कि हम कुछ दिन से ना बहुत लेक्चर अपने ब्लॉग्स में दे रहे हैं, तो लेक्चर की तरफ नहीं आना, ख्वा कच्ची हंसी खेलें ख्वा पक्की हंसी करें, लेकिन हंसी करें आप बस। पक्की हंसी दिखा भी दें कभी, पक्की हंसी होती क्या है? अच्छा वो तो कच्ची हमारी जा रही है, पक्की तो दिखाना क्या वो है? तो आपके पास पक्की तो आपके पास है, आप ही कभी दिखा दे पक्की हमें। मेरी तो मुस्कुराहट है, मैं तो हंसता बड़ा काम हूँ, मुस्कुराता तो रहता हूँ। आपने वो गाना सुना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है, क्या क्या गम है गम जिसे है जिसको छुपा रहे हो? ये आप हैं अच्छा मैं हूँ क्या, जो मतलब हा हो है हा हो। ये शक्ल इनकी देखिए क्या बनाते हैं। सब जाली। मुझे ये देखिए, मुझे ट्रम्प याद आ जाता है, हमें वो जाली ऐसे ऐसे जाली करके करते हंसता रहते है। हैं और खुद असली है, फिर बार बार ट्रम्प को लाते हैं, मैं निकालती हूँ इनको, ये मैं इनको निकालती हूँ उसमें से, और ये फिर घूम घूम के उधर जाते हैं, घूम घूम के। जी जी, जी वो आपने काट दिया, मेरे ख्याल में इनको नाक में कुछ हो रहा था तो इन्होंने वो काट दिया, वो सीन ही मेरा काट दिया। फिर देख रहे क्या यार नाक ऐसे की बात की, इन्होंने जानबूझ के नाक की बातें करती हैं कि नाक 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 पूरे मुआशरों में चलता है ना, मेरी नाक कट देती, मेरा नाक पता नहीं क्या कर दिया। नहीं, मैं इतनी जबरदस्त बात नाक कर रहा था नाक ट्रम्प लेके की, बैठे हुए, फिर और ट्रम्प इन्होंने आ काट गया, दिया उसको। फिर ट्रम्प, गर्मी लग रही है। नहीं फिर ट्रम्प, आपने ट्रम्प का पीछा ही नहीं छोड़ रहे। वो जाली लोग हैं, सारा सिस्टम ही जाली है, सब बकवास, सब झूठ और डायलॉग पे चल रहा है। आई स्वेयर मैं आपको बता रहा हूँ, हर तरफ जो है ना 2 नंबर चीजें चल रही हैं, उसी में हम पल बढ़ गए हैं, हम भी 1.5 नंबर पौने 2 हम भी हो देखो गए। जी ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਆਣਾ ਸੀ, ਗਾਇਨੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਕਾਰਪਰੋ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੋਸੇ ਇਤਨੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਮੋਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂ ਸਰ इतने मजे। फेवरेट है, जब से स्कार्बरो में रह रहे 10 साल से, तो मेरे ख्याल में हम खा रहे हैं। ओए खोए खोए खोए, स्पेशली जाते हैं इतनी दूर, 40-50 किलोमीटर का सफ़र करते हैं कि ये समोसा खाएं, तो अब ये देखें जी खा रही हैं, वाह वाह। और बड़ा हैवी भी नहीं है, बड़ा मतलब लाइट है, पेट पे लाइट रहता है। ये बड़ी बात है कि पेट पे बोझ नहीं पड़ता इसको खाने से, इसका मजा ही बड़ा है। और चटखारा बहुत है। ओए होए, इतना मेरा समोसा वाला कभी मुझे पसंद नहीं आया, आपको यकीन कर, लेकिन असद को पता है कि मुझे यही समोसे पसंद है। इसी का ही आप खाती हैं। मैंने और असद ने स्कार्बरो में जब निकलना ना फिजा, हम दोनों ने बाहर बैठ के ना तो समोसे खाने लग जाना। अब फिजा को भी हमने थोड़ी आदत डाली है, फिजा जान ने खाए हैं, खाए दो हैं। खाए मेरे ख्याल हाँ में। हाँ एक चिकन का भी आपने लिया है। तो अब जरा इधर कोक का समाचार हो गया, कोक पीने का, बस साहब अब कोक कर रहे हैं। वो क्योंकि बड़ा वो है, मतलब ड्राई हो गया ना इधर समोसा, इतने कितने 12 खा गए, कितना खा गया हूँ मैं, 8-9 तो खा गया हूँ। आपने कितने? 8 तो आप भी खा गई हैं। 8 तो मैं भी खा गई। पीछे 4-5 रह गए, 25 लिए थे, 6 रह गए, 18 समोसे गए। तो जी जब मॉल में आते हैं ना तो क्रिसमस का थानू सारा मंजर नज़र दिखाने हैं, और ए देखो है क्रिसमस का आगाज़ हो गया, समझ गया। मैं क्या थानू थोड़ा नज़ारा करा दूँ, इधर है इतना प्यारा क्रिसमस ਦੀਆਂ सजावटां, इधर भी देखो क्रिसमस की सजावटें। इतना सजाया हुआ है दूर तक, देख
जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें हो चांदनी रातें, चांदनी रातें, जग जग सोए हम जागे।